अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? Here is the video on novella. We can say it a novel as well, Reluctant Fundamentalist. And before understanding Reluctant Fundamentalist, we must have an idea about what is post-colonialism, because basically this novel is based upon post-colonialism, and it is a theory which literally means the period of the time after colonialism. So basically what is colonialism? Colonialism के बारे में हमें पता होगा, and then we will further move on to understand what is post colonialism. colonialism जो कब्जा करती हैं ब्रिटिश जो है वो कब्जा करती हैं किसी मुल्क में, कॉलोनीज बना लेती हैं फिर, और whenever European powers leave most of the countries on which they were ruling, तो उसके बाद अगर कोई भी वहाँ से राइटर अगर कोई अपना काम पब्लिश करवाए या वो कोई काम लिखते हैं, अपनी राइटिंग्स, लिटरेरी राइटिंग्स मोस्टली, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। और जब वो फ्री हो जाती हैं, कॉलोनीज जब फ्री हो जाती हैं ब्रिटिश के रूल से, उसको हम बोलते हैं, उस पीरियड को हम बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म। So basically this novel was based on post-colonialism and it is referred to as post-colonial novel. I'll explain few chunks from the very first chapter of this novel because it is not possible to explain the in every line. So here are the few chunks. Let me explain. It is from the second line of the novel, from the first chapter of the very first page. Do not be frightened by my beard, I'm a lover of America. And this dialogue is spoken by Changes, and we are not told about the name of the main character of this novel, but read full novel, then we come to know that the main character of the novel is Changes, and many of the other characters are also main character, but in this first chapter we come to know that there are two main characters, but here the main character which is introduced is Changes, and he says to a stranger that do not be frightened by my beard, I'm a lover of America. बियर्ड, अगर किसी ने बियर्ड रखी होती है तो अमेरिकन उससे थोड़ा सा फ्राइटन फील करते हैं, क्योंकि दे कंसिडर हिम एज अ टेररिस्ट, उसको टेररिस्ट कंसिडर करते हैं। एंड दिस इज बेसिकली द मेन थीम ऑफ दिस नॉवल, fright, fear, and many of the words like that. And he is also a lover of America, although he is a Pakistani, but he is a lover of America as well. And the word which is very much important here is mission, which is written in italics. और इसका मतलब क्या है कि मिशन, दोनों ही एक मिशन पर हैं। स्ट्रेंजर जो है, हमें स्ट्रेंजर को एक स्टोरी बताई जा रही है ना, कैफे में दोनों बैठे हुए हैं और स्ट्रेंजर को स्टोरी बताई जा रही है। स्ट्रेंजर भी अपने मिशन के ऊपर है, एंड चंगेज इज ऑल्सो ऑन हिज मिशन। एंड द थर्ड चंक विच इज ट्रू, योर हेयर शॉर्ट क्रॉप्ड and your expansive chest, the chest I would say of a man who bench presses regularly. और वो उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन बता रहा है, चंगेज स्ट्रेंजर की फिजिकल डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि आपकी बॉडी देख के पता चल रहा है कि दैट यू बिलोंग टू अमेरिका, मुझे इससे पता चल रहा है कि तुम अमेरिका से हो। Instead it was your bearing that allowed me to identify you, and I do not mean that as an insult, for I see your face has hardened. और जिस तरह से चंगेज़ ने उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बताई है, उसकी आइडेंटिटी बताई है जो सामने हमें नज़र आ रही है, जिस तरह वो बताते हैं, तो स्ट्रेंजर थोड़ा सा टेरिफाइड फील करता है, उससे थोड़ी सी परेशानी होती है। फिर वो चंगेज़ उसे बताता है कि आपको परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज there was some tension and conflict and worry that is troubling the stranger. उसके फेस के ऊपर सब कुछ वाज़े नज़र आ रहा था, तो इससे हमें पता चल रहा है कि उसे कोई ना कोई परेशानी है जो उसको ट्रबल कर रही है। और जो स्ट्रेंजर ने, चंगेज़ ने बताया था स्ट्रेंजर को उसकी अपीयरेंस के बारे में, तो वो कहता है कि मैंने इंसल्ट के तौर पर तो नहीं बताई आपकी अपीयरेंस, डोंट टेक इट लाइक एन इंसल्ट, फॉर आई सी योर फेस हैज हार्डन मीन थोड़ी सी उसको ट्रबल हो रही है। एंड नाउ ही कम्स टुवर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ गॉथिक बिल्डिंग्स. Gothic buildings, younger, are later learned than many of the mosques of the city, but made through acid treatment and ingenious stone masonry to look older.
अब यहाँ पर इससे आगे भी जो लाइंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। इससे यहाँ पर हमें कल्चरल डिस्पैरिटी के बारे में बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन न्यूयॉर्क आर न्यू बिल्डिंग्स, लेकिन उनको एक ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है उन बिल्डिंग्स के ऊपर और उनको पुरानी दिखाई जाती हैं। मतलब बिल्डिंग्स तो न्यू होती हैं, न्यू मटेरियल उनके अंदर यूज़ किया जाता है, लेकिन वो उनको ऊपर आउटर लेयर ऐसी उनकी कर दी जाती है कि इससे पता लगे कि ये ओल्ड बिल्डिंग्स है। लेकिन वो बता रहा था चंगेज़ के इधर पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लाहौर में कि उसकी बिल्डिंग्स, लाहौर की बिल्डिंग्स तो पुरानी बनी हुई हैं और वो पुरानी ही नज़र आती हैं। हमने कोई उसके आउटर लेयर में कोई ट्रीटमेंट वगैरह हमने यूज़ नहीं की। एंड दीज लाइन्स आर ऑल्सो अ टॉन्ट ऑन अमेरिका दैट हाउ दे कैन चेंज द फैक्ट्स और रियलिटी। अमेरिकन कल्चर के ऊपर भी टॉन्ट किया गया है। एंड दिस पैराग्राफ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। I reached my senior year without having received a single B. I reached my senior year without having received a single B. और ये किसके बारे में बता रहे हैं? अपने बारे में, कि मैं सीनियर ईयर में पहुंच गया, मतलब एट द लास्ट ईयर में मैं पहुंच गया कि मुझे एक भी बी ग्रेड नहीं मिला। मतलब ये कि उसको सारे ए ग्रेड्स मिले हैं, बी ग्रेड तो उसका कभी आया ही नहीं है। इट मीन्स दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन. Looking back now, I see the power of that system, pragmatic and effective like so much else in America. We international students were sourced from around the globe, sifted not only by well-owned standardized tests but by painstakingly customized evaluations, interviews, essays, recommendations. अब वो ये बात बता रहा है कि and the brightest of us had been identified. I myself had among the top exam results in Pakistan. अपने बारे में बता रहा है कि टॉप एग्जाम रिजल्ट्स इन पाकिस्तान, अपनी उसकी हमें खुद भी पता चल रहा है कि एक इंसान है उसने कभी सिंगल बी ग्रेड नहीं लिया तो वो इंटेलिजेंट ही होगा. एंड वॉज बिसाइड्स अ प्लेयर गुड इनफ टू कम्पीट ऑन द varsity team, which I did until I damaged my knee in my sophomore year. Students like me were given visas and scholarships, complete financial aid, mind you, and invited into the ranks of the meritocracy. Now the word of meritocracy is also very much important here. Meritocracy means कि जो top merit के students होते हैं, intelligent students होते हैं, उनको hire करना. किस कंपनी में, अंडरवुड सैमसन की कंपनी ऐसे students को hire करती है जो intelligent students होते हैं. And it is like a trap. It is like a trap for Pakistani people, Pakistani intelligent people. He was top ranked student, and due to this, he got admission in Princeton University. This paragraph is all about getting his admission in Princeton University, and he has not even got a single B grade. जो स्टूडेंट्स भी अमेरिका जाते हैं एंड दे आर द टॉप स्टूडेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा टफ ट्रायल्स में से गुजारा जाता है. जो हमारे कंट्री से जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं वहाँ अमेरिका में, जो उनमें से टॉप पर आते हैं उनको अमेरिका में एडमिशन दिया जाता है. हमारे मुल्क को एबल लोगों से महरूम कर दिया जाता है. फिर जब उनको इतनी ज़्यादा स्किल्स और टेक्निक्स सिखाई जाती हैं अमेरिका में, जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, फिर वो पाकिस्तान आना फिर इतना पसंद नहीं करते. उनको उनकी ब्रेन वॉशिंग ही ऐसे की जाती है कि वो पाकिस्तान फिर आएंगे भी नहीं कभी. But he came to Pakistan. Changiz came to Pakistan to save his country, to represent his country. Next chunk is when my turn came, I entered and found a man physically not unlike yourself. He too had the look of a seasoned army officer. और ये अब किसके बारे में बात है? ये स्ट्रेंजर के बारे में है कि स्ट्रेंजर कैसा दिखता था. ये स्ट्रेंजर की लुक के बारे में है. चंगेज़ को शक हो रहा है कि स्ट्रेंजर सिटिंग हेयर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी अमेरिकन. ऑर्डिनरी अमेरिकन वो नहीं है. उसे पता लग रहा है कि वो किसी काम के लिए आया है, कोई ना कोई मकसद है उसका, क्योंकि वो लग भी रहा है कैसा, सीजन्ड आर्मी ऑफिसर के जैसा लग रहा है. अब इस लाइन में भी हमें कल्चरल डिस्पैरिटी नजर आ रही है. लेयर्ड लाइक अ सेडिमेंट्री प्लेन विद द accreted हिस्ट्री ऑफ इन्वेडर्स फ्रॉम द आर्यंस टू द मंगोल्स टू द ब्रिटिश. अब वो चंगेज़ अपनी हिस्ट्री बता रहा है कि हमारी बिल्डिंग सच में पुरानी है, हमें किसी किस्म के फ्रॉड या झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव गॉट वेरी ओल्ड कल्चरल पाकिस्तान. कहाँ से? आर्यन से. फ्रॉम द आर्यन टू द मंगोल्स टू द ब्रिटिश. बट स्टेटस एज इन एनी ट्रेडिशनल क्लास कॉन्शियस सोसाइटी डिक्लाइंस मोर स्लोली देन वेल्थ. ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्टेटस
स्टेटस जो है डिक्लाइंस एज इन ट्रेडिशनल क्लास कॉन्शियस सोसाइटी डिक्लाइंस मोर स्लोली के स्टेटस जो है बहुत बहुत आहिस्तगी से कम होता है। मतलब कि अगर कोई हमारे बाप दादा जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो वेल्दी रहे हैं, रिच अमीर रहे हैं और उनके पास स्टेटस भी बहुत था, लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन आई है स्टेटस तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। पैसे बेशक ख़त्म हो जाए, वेल्थ अमीरियत बेशक ख़त्म हो जाए, लेकिन स्टेटस ख़त्म नहीं होता। जो हमारी नेक्स्ट न्यू जनरेशन आएगी उसके लिए भी स्टेटस बहुत ज़्यादा उनके लिए स्टेटस होगा, उनके लिए बहुत अहमियत होगी, बेशक वो इतने ज़्यादा अमीर ना भी हों। और स्टेटस का मतलब इज्जत, इज्जत बाकी रह जाती है, पैसे बेशक रहे या ना रहे। Now the last paragraph is Princeton made everything possible for me, but it could not make me forget such things as how much I enjoy the tea in the city of my birth, steeped long enough to acquire a rich dark color and made creamy with fresh full fat milk. Now the tea here is symbolic. टी इज़ हैविंग अ सिम्बॉलिक वैल्यू। जहाँ पर उसने अचीवमेंट की है वो टी को मिस करता है, उसे चाय बहुत ज़्यादा याद आती है लाहौर की। सिंबल ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस बिटवीन टू पीपल, इट इज़ सिम्बॉलिकली फ्रेंडशिप और गुड रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रेंजर्स। That's the end of this first chapter. I hope that you understood it very well. Thank you and Allah Hafiz. Take care.